नमस्कार। राज्यसभा में होने वाली चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन बिल 2017 पर राज्यसभा में गहन चर्चा हुई। आइए देखते हैं चर्चा का आखिरी अंश और मानव संसाधन मंत्री का जवाब। Ms. Wansuksia. Thank you, Mr. Chairman, sir. I have been waiting for an opportunity for a long time to participate in the discussions on the issues that has far-reaching implication on the capabilities of children seeking education both at primary and secondary level. In this backdrop, I welcome the initiative of the government in moving this amendment bill for the consideration of this August House. We have made much headway with implementation of our flagship education program, Sarva Shiksha Abhiyan. From the survey conducted both by the governmental agencies and the NGOs on attaining declared target set under Sarva Shiksha Abhiyan program, I find there is still a lot to be done both on the development of infrastructure and improving the content and quality of teaching. The latest edition of the report, regularly brought out by Pratham NGO, Annual Survey of Education Report, present a mix of findings on key elements like reading ability, enrollment rates, dropout rates, and other incentives like midday meal scheme, etc. The amendment attempts to deploy an ad hoc measures arising from the acute shortage of trained teachers by relaxing the minimum stipulated qualifications for a limited period of 5 years, by which time it expects the teachers' training infrastructure will be in place to address the manpower requirement projected under this bill. From what is reported in the media, the state of teacher education in India is very dismal, with the regulatory body, National Council for Teacher Education, abdicating its mandated responsibilities. It is interesting to note that the Council has served a show cause notice to more than 3,800 teachers training institutes across India as to why their affiliation should not be withdrawn for violation of norms relating to the infrastructure, faculty, and willingness to engage a third party for independent assessment of the quality of the training imparted. The alarming state of teachers' education in the country is reflected the fact that in recent years, the majority of the graduates that have appeared for the Central Teachers Eligibility Test have failed to demonstrate even the most basic knowledge base expected from the teacher. This is not to mention the vision, skill, and values necessary for the kind of classroom evasions by progressive policy document, but which for the most part are not adequately addressed by teachers' training programs. Although a range of committees and policy documents in recent decades have decried the worrying state of teachers' education and have made many recommendations for its urgent reforms, the majority of these proposals have yet to be implemented. While the mandate for more teachers has in recent years led to an explosion in the number of teachers' education institutions and courses of various levels, this has not been coupled with a push on infrastructure, faculty expertise, learning resource, or quality. A greater challenge is that more than 85% of these teacher education institutes are in the private sectors where the state has exerted little quality control. No doubt my colleagues and seniors in this August House have already shared their erudite views on this issue, and it is for the House to strike a balance between the realities prevailing in the education system today, in particular reference to teacher education, and a capacity to build up a teacher training infrastructure as planned under the right of children
to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2017 and go by the wisdom and judgment availability in hindsight. I hereby recommended the bill for adoption by the House. Thank you. Thank you very much, Ms. Wansu. Now, Mr. Jairam Ramesh. Mr. Vice Chairman, sir. So, Mr. Sahasrabuddhe said that the Right to Education Act was passed in a hurry, was prepared in a hurry and passed in a hurry. I would like to remind Mr. Sahasrabuddhe, Article 21A was introduced in the Constitution of India, and Article 21A reads, "The state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14 years in such manner as the state may by law provide." This Article 21A was introduced in the Constitution in the year 2002 by the 86th Amendment when Sri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. And it is in continuation of that Article 21A that the Right to Education Act became a reality in 2010. 8 years of preparation, 8 years of homework. Sir, my one and only question for the Education Minister is the following. In the year 2013-14, the budgetary allocation for Sarva Shiksha Abhiyan was 24,812 crores. In 2017-18, the budgetary allocation for Sarva Shiksha Abhiyan is 23,500 crores. The central budgetary allocation has come down for Sarva Shiksha Abhiyan. In the year 2013-14, the budgetary allocation for the midday meal scheme was 10,918 crores. In the year 2017-18, the budgetary allocation for midday meal has come down to 10,000 crores. So I would like to ask the Honorable Minister, how in light of the declining budgetary allocation for Sarva Shiksha Abhiyan and midday meal scheme, the objectives for the right to education will be fulfilled? राजीव शुक्ला सर, जो पूरी बहस हुई उसमें ये बात समझ में आई कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए पैसे की कमी है। जयराम जी ने भी पॉइंट आउट किया और बाकी सबके भाषणों से पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं है, टीचर्स रखने के लिए पैसा नहीं है। मैं चूंकि रहा हूँ योजना मंत्री जी को 2 सुझाव देना चाहता हूँ। इनका कई ऐसी स्कीम्स हैं भारत सरकार में जिन स्कीम्स में हजारों करोड़ जाता है वो पैसा पूरी तरह से बर्बाद होता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मैं उदाहरण के लिए देता हूँ प्रौढ़ शिक्षा। हर पंचवर्षीय योजना में 6,000 करोड़ का प्रावधान होता है और हमें आज तक प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ा हुआ एक भी आदमी नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो तो मिला हो, इसलिए वो सारा पैसा कुछ NGO जो है लेके वो कहाँ जाता हो कुछ पता नहीं। अगर वही पैसा प्राइमरी एजुकेशन को डाइवर्ट किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे एक इनका लिटरेसी मिशन है, कोई एक स्कीम में पुस्तकें सप्लाई की जाती हैं, बुक्स जो है वो सिर्फ जो है कागजों पे रसीदें जमा होती हैं और बिल्स दिए जाते हैं। पैसा एक्चुअली ना किताबें मिलती किसी को ना कुछ होता है। इन दोनों स्कीम्स को आप रिव्यू करिए, उनका पैसा इसमें डाइवर्ट करिए और इन स्कीम को अगर बंद करें तो बहुत अच्छा है। तीसरा सुझाव जो इन्होंने विप्लव जी ने भी बोला था कि सबसे बड़ी समस्या है जो बच्चे को जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छूटती, वो है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में और ख़ासतौर से इधर बिहार वगैरह में भी, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। जिंदगी भर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। उस आदमी को कुछ भी बन जाए, DM हो जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको कक्षा 6 से क्लास 6 से उसको ये है। और अगर आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस साउथ इंडिया की तरह कर देंगे प्राइमरी एजुकेशन में भी तो टीचर्स को नौकरी भी मिलेगी, साउथ इंडियन टीचर्स को भी मिलेगी उसमें नौकरी, और वो बच्चे की जो हीन भावना है वो निकल जाएगी। क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे आगे पहुंच जाते हैं और वो हिकारत की नज़र से ऐसे देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जो क्षेत्र हो, वो हमेशा जिंदगी भर हैंडीकैप रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस रूपा गांगुली। माननीय उपसभापति, आपने हमें कहने का मौका दिया है, धन्यवाद। मंत्री जी के ये बिल हम तहे दिल से सपोर्ट करते हैं और हमको लगता है कि ये आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। बंगाल में से कितने टीचर्स इसमें एनरोल्ड हो रहे हैं, अगर इसके कुछ मुझे नंबर्स मिल जाए कहाँ से हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
और दूसरा है कि अगर ये प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उन लोग का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है अगर ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड कर्मचारी वर्कर्स दे विल नॉट पार्टिसिपेट on any political rally on a working day और कोई भी चिल्ड्रन कोई भी कभी भी स्कूल चिल्ड्रन पॉलिटिकल रैली में कभी ना शामिल हो सके। इसमें थोड़ा सा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रैली में शामिल ना हो सके, इसमें कुछ प्रबंध या कुछ पाबंदियाँ ला जा सकते कि नहीं। और टीचर्स अपॉइंटमेंट में और जहाँ स्टूडेंट एनरोल्ड में, जैसे हमारे बंगाल में करोड़ों के झंझट होते हैं, उन पे अगर मॉनिटरिंग की कोई बात हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है, तो बहुत मेहरबानी होगी हमारे बंगाल के लोगों के लिए और देश भर के लोगों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Sri Ramamurthy. Thank you very much, sir. I would not like to go into the merits of Right to Education Act. All of us know that it is one of the most encouraging act, and it has been accepted to be a very good act in the country. But there are a lot of lacunas in the implementation. I would like to draw the attention of the Honourable Minister to Section 29 of the RT Act, which very clearly mentions the curriculum and evolution procedure and conformity with values enshrined in the Constitution, all-round development of the child, building up child's knowledge, potentiality and talent, development of physical and mental abilities, etc., has been mentioned. So to ensure this, we need teachers, qualified, committed, motivated and trained. Section 23, of which we are having the discussion today, is added perhaps keeping requirements under Section 29 of the Act. I would like to mention about the scarcity of good teacher training institutions in the country. Thank you so much. Most of the teacher training institutions are under the private sector only. The government should seriously think of establishing quality and high standard teacher training institutions, without which I don't think we'll be able to achieve any standard. We can't reach the goal what we are aiming to reach. Sir, I would like to mention, again, bring it to the notice of the Honourable Minister, that training is a very important component for any sector, particularly a teaching sector. If training is not made compulsory in the teachers, there should be a rotation. You know, at every level we have training. At teachers level, once he becomes a teacher, particularly in the primary and elementary level, we will not have any training, any reorientation. There should be made a compulsory activity and it should be rotative. I would like to mention here about the government schools. In Karnataka, it's the situation that where, you know, there is a lot of rush coming to the private schools. Irrespective of the situation, private schools are getting filled up and government schools are getting vacant. The parents want the children to be admitted to the private schools. Thank you very much. कैसे करेंगे 11 लाख टीचर्स का 2 साल में प्रशिक्षण? विधि स्वयं रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी 11 लाख टीचर्स को हम पहुंच रहे हैं। स्वयं पे तो अच्छा लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल होगा, मटेरियल होगा, सब होगा। ये ऑनलाइन रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑफलाइन भी रहेगा। स्वयं प्रभा के माध्यम से दूरदर्शन के चैनल्स से घर में भी वो पढ़ सकते हैं। Yes, even though it's a small bill, the discussion was very good. सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। Yes, Mr. Minister. Yeah, please. डेप्यूटी चेयरमैन, मैं बहुत आभारी हूँ सभी 22 सदस्यों का जिन्होंने इस
बिल को पूरी दिल से तहे दिल से समर्थन दिया और इससे ही साबित होता है कि एजुकेशन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एजुकेशन नेशनल एजेंडा है। हम सबकी कंसर्न एक है, हम सबका लक्ष्य एक है। जैसे परवीन बहन ने कहा, एजुकेशन एम्पावर्स, तालीम ही सब कुछ है। और तालीम जो सब कुछ है, एक खेतिहर मजदूर की लड़की उसी जिले की जिलाधिकारी बनने का अगर ख्वाब साकार कर सकती है तो वो ताकत केवल तालीम में है। जात, मजहब और सबसे ऊपर उठकर ये एम्पावर करता है। अब मूल मुद्दा सबका जो था कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी खराब हो रही है। हम में से बहुत लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं, मैं भी जिला परिषद में ही पढ़ा हूँ। आज अगर स्थिति बिगड़ी है तो सबके चिंता का विषय है और हमें सभी मिलकर उसको दूर करना है, उसकी स्थिति को सुधारना है। इसलिए 5 इनिशिएटिव हमने सोचे हैं। पहला था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में लर्निंग आउटकम्स वेर मेंशन्ड बट दे वर नॉट डिफाइंड दैट टाइम। वी हैव कंप्लीटली कोडिफाइड दी लर्निंग आउटकम्स। तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 8वीं तक हर वर्ष में हर विषय का क्या ज्ञान छात्र को निश्चित आना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम्स अब डिफाइन हो गए। इस साल सभी स्कूलों में अभी शिक्षकों को हैंडबुक दिया है और हैंडबुक के आधार पर उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। और अगस्त के एंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी स्कूलों में पोस्टर्स भी लगेंगे कि हर स्कूल में हर स्टैंडर्ड में क्या क्या आना चाहिए छात्र को। इसके साथ साथ पेरेंट को भी एक पैम्पलेट मिलेगा कि आपका छात्र 5वीं में है तो उसका ये आना चाहिए। तो दिस ब्रिंग्स इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी फैक्टर, द स्टेक होल्डर स्टेप विच यू सेड, दिस विल ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी। और यही होना चाहिए, नहीं तो जो आज प्रथम के सर्वे हो या हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे हो, 5वीं का छात्र अगर तीसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता और 7वीं का स्टूडेंट अगर 5वीं का गणित नहीं कर सकता तो ये फेल्यूर सामूहिक फेल्यूर है। और इस फेल्यूर को दुरुस्त करने के लिए हमने लर्निंग आउटकम्स की शुरुआत की है और ये अच्छी तरह से होगा। मैं आपको सबको कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में भी आप स्कूल में विजिट करिए सितंबर में, क्योंकि उस समय हम नेशनल असेसमेंट सर्वे भी करने वाले हैं। तो उस समय ये तय करिए, देखिए कि सचमुच में बदलाव ग्राउंड पर हो रहा है कि नहीं। 1ली से 8वीं तक परीक्षा यानी रोकना नहीं, इसका कारण था उस समय जो विचार किया गया था वो ये था कि स्टूडेंट पर परीक्षा का अनावश्यक प्रेशर ना बने, उसको मार्कों की रेस में 1ली से न डाला जाए। ये उद्देश्य अच्छा लगता है और उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया था कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन नहीं हुआ साइंटिफिकली और उसके कारण 1ली से 8वीं तक बिल्कुल जा रहा है और अनेक जगह स्कूल मिड डे मील स्कूल बन गए हैं, आना खाना जाना। तो ये जो है जिम्मेवारी खत्म हो गई और इसलिए लर्निंग आउटकम के साथ साथ 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेकर 2 चांस देकर, आपने जैसे कहा 2 चांसेस, पहली परीक्षा मार्च में होगी, मार्च में परीक्षा में जो बच्चे फेल होंगे उनको मई में दूसरी परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा में भी जो फेल होगा उसको ही डिटेन करेंगे और ये अधिकार भी राज्यों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सुधार भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा और छात्र का जो सर्वे आफ्टर सर्वे जिस तरह का चित्र आता है वो नहीं आएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अब देखो 2.5 करोड़ बच्चे 10वीं के एग्जाम देते हैं देश भर में। 2.5 करोड़ छात्रों में केवल 7 लाख CBSE के आधे छात्र परीक्षा न देते थे बोर्ड की और ये करेक्ट बराबर नहीं था। इसलिए हमने इसका निर्णय किया कि बोर्ड इस साल से कंपलसरी हुआ। पिछले साल निर्णय घोषित किया, तुरंत लागू नहीं किया, 1 साल के बाद लागू किया, लेकिन इसका 90% अप्रूवल हुआ पेरेंट्स, टीचर्स और सबके तरफ से, स्टूडेंट्स के तरफ से भी। सबसे मुख्य कड़ी है टीचर्स और जिसके लिए ये बिल है। टीचर कितने लगन से सिखाता है, कितनी टीचरशिप उसमें है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार कहा कि हमें इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी 12वीं के बाद जिसको लॉ करना है वो 5 साल का लॉ कंबाइंड कोर्स करता है
जो डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वहाँ जाता है तो सिलेक्शन करता है, तय करता है कि मुझे ये बनना है और वो सीखता है। वैसे ही जिसे टीचर बनना है वो बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इसका इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होगा और 4 साल में वो दोनों डिग्री हासिल करेगा और वो टीचर बनेगा, सबसे काबिल बदलाव होगा। तो ये भी बदलाव एनविल पे है, इसके बारे में भी हम आपके सामने जल्दी आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज बहुत सारे राज्य अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। हमने शिक्षण मंथन हमने किया और शिक्षण मंथन में सभी राज्यों के अधिकारी, वहाँ के एनजीओज, वहाँ के अच्छे शिक्षक जिन्होंने नवाचार किया है, इनोवेशन किया है, और अच्छे हेडमास्टर्स जिन्होंने भी नवाचार किया है, स्कूल को बेटर बनाया है, ऐसे सबको इकट्ठा करके हमने 5 जगह 2-2 दिन एक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा किया, जिसे हमने शिक्षण मंथन कहा। अब आता है इस बिल पर कैसे करेंगे 11 लाख टीचर्स का 2 साल में प्रशिक्षण, ये मुद्दा उठा और करेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। वो पाठ तो पढ़ा ही रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उनको अलग से प्रैक्टिकल करने का लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको थियोरेटिकल ज्ञान भी होना चाहिए और उस पर उनका समृद्धि आनी चाहिए शिक्षा में। और इसलिए ये स्वयं के माध्यम से ये कोर्स शुरू होगा। विद दिस स्वयं रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी 11 लाख टीचर्स को हम पहुंच रहे हैं। सबके लगभग सबके हमारे पास मोबाइल भी है, ईमेल भी है, सबको इंडिविजुअली हम पहुंच रहे हैं कि आपको रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है। स्वयं पे देश के बेहतरीन टीचर्स, NIOS उसके कोर्स तैयार कर रहे हैं, NCERT 3-4 संस्था मिल के कर रहे हैं। अच्छा कोर्स का नेटवर्क तैयार हुआ है। तो अच्छा लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल होगा, मटेरियल होगा, सब होगा, और डिस्कशन फोरम के द्वारा प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसके भी जवाब आएंगे, और एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसको जो करना है ये ऑनलाइन रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑफलाइन भी रहेगा। स्वयं प्रभा के माध्यम से दूरदर्शन के चैनल्स, जिनके घर में डिश दूरदर्शन की नहीं है, जो फ्री डिश होती है, तो फ्री डिश 1300 रुपये में वो सेट टॉप बॉक्स और डिश मिलती है, वो लगा के लेना है। कैसे लेना वो भी हम टीचर्स को सबको बताएंगे। तो घर में भी वो पढ़ सकते हैं, अपने सहूलत से पढ़ सकते हैं। और उसमें CD जो है मटेरियल की, वो भी हम फ्री देने वाले हैं टीचर्स को। और ये केवल एग्जामिनेशन का फीस होगा, वो मॉडरेट फीस होगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का खर्चा है वो तो है, और ये जो मटेरियल देंगे, जो प्रिंटेड देंगे, उसका भी खर्चा होगा, या CD दे रहे तो उसके एवज में थोड़ी फी में ये सिखाया जाएगा। अब इसमें 12 दिन का प्रैक्टिकल फेस टू फेस ट्रेनिंग भी होगा हर साल, यानी 2 साल के ट्रेनिंग में 12-12 दिन का उनका शिविर होगा, ब्लॉक स्तर पे होगा। वहाँ सब छात्र आएंगे, वहाँ के शिक्षक आएंगे, छुट्टी के दिनों में उनके होगा, और उसमें प्रत्यक्ष अध्यापक और उनका आमने सामने संवाद भी होगा, और सारी डिफिकल्टी सॉल्व होगी। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सभी राज्य इसके साथ हैं। सभी राज्यों का हमने सहयोग लिया है, सभी राज्य इस स्कीम के साथ है, तो ये होगा। इंग्लिश मीडियम की क्रेज़ का उल्लेख डुलू जी ने कहा, तो वो सही है। अब है, अभी भी कहा कि भाई इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन मैंने आज इसीलिए हिंदी बोला कि इंग्लिश बोले तो ही स्मार्ट, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब लोगों के मन में हो गया, गरीब के मन में भी आ गया कि भाई मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश सीखने को किसी को आपत्ति नहीं है। इंग्लिश तो हमारे यहाँ 20 साल पहले महाराष्ट्र में स्कूल के पहली से इंग्लिश शुरू हुआ एज ए सब्जेक्ट, बट इंग्लिश मीडियम एक अलग चीज़ है। अनौपचारिक शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। अभी 14 के आंकड़े हैं कि 60 लाख थे आउट ऑफ स्कूल, अभी मेरा अंदाज़ा है 50 लाख के आसपास अभी है। आपको भी देखने को आता है कि जहां हर समय छोटे छोटे बच्चे का मजदूरी में लगते थे, आज नहीं दिखते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो वो भी एक बात है।
और ये समाप्त करना है। इसलिए स्कूल चलो भाई स्कूल चलो, ये एक मुहिम हम शुरू करें और हम सब उसके साथी हो। तो एक एक जैसे गुजरात में करते थे कि हर एक कोई, केवल अधिकारी विधायक और सांसद ही नहीं, हर कोई एक एक ऐसे आउट ऑफ स्कूल छात्रों को ढूंढ के वहाँ स्कूल में दाखिल करेगा। ये भी एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। शिक्षकों को नॉन एकेडमिक काम मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, सेंसस का काम केवल उनको होगा जो 10 साल के बाद एक बार, इलेक्शन का काम केवल होता है जो इलेक्शन 5 साल के बाद ही होता है, उसमें भी रोल बनाने का काम उनके पास नहीं है। फिर डिसास्टर का कुछ होता है अचानक तो वो होता है, उसके सिवा नॉन एकेडमिक काम टीचर्स को नहीं देना चाहिए, यह हमने कहा है। आज वास्तविकता है कि गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट 4% से प्रतिवर्ष घट रहा है, प्राइवेट स्कूल का 8% बढ़ रहा है। हम इसको चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं कि हम सरकारी स्कूलों का दर्जा ऐसा उत्तम करेंगे कि एक हेल्दी कंपटीशन में सरकारी स्कूल जीत सकता है, यह हम दिखा कर रहेंगे और आप सबके मदद से करके रहेंगे। और जैसे आज केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई का जो रिजल्ट का परसेंटेज है उससे ऊपर है, ये सरकारी स्कूल ही है। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों लगते हो, केवी का थोड़ा तो लिफ्ट करा दो। तो वो जो होता है, ये कारण है कि एक सरकारी स्कूल भी अगर एक सिस्टम लाते हैं तो क्वालिटी दे सकता है। तो यही जिला परिषद के स्कूलों में भी हो, कॉरपोरेशन के स्कूलों में भी हो, और केवी जैसे संस्थाओं का भी कैसे विस्तार किया जा सकता है, ये करने की जरूरत है। टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर है या एडहॉक पर रखना ठीक नहीं है, या हम उच्च शिक्षा में भी कर रहे हैं। 5 डे स्कूल की कंसेप्ट जो है उसमें ऐसा है कि राज्यों को अधिकार है, कितने आवर्स होना चाहिए लर्निंग ये तय है, फिर उसका टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करें और छुट्टी कौन से दिन पे दे वो उनका है। मैं बताना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल में 25% छात्र जाते हैं तो उसका भरपाई का, कॉम्पेंसेशन का पैसा भी सरकार देती है, और कहीं कम देती है, कहीं ज़्यादा देती है। कहीं 5,000 रुपये प्रति छात्र देते हैं, कहीं 25-30 हज़ार रुपये छात्र भी देते हैं। एक बड़ा अच्छा सिनेमा इरफान का आया था अभी, हिंदी मीडियम, आपने नहीं देखा हो तो देखो, कि ईद में प्रवेश मिलने के लिए क्या क्या लोग करते हैं और कैसे अमीर आदमी भी गरीब दिखाने की कोशिश करता है, उसकी कहानी बताने वाला वो एक हिंदी मीडियम नाम का सिनेमा था, वो जिसको समय मिले जरूर देखें। बजट का जहाँ तक जयराम जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ बजट कम नहीं हुआ है, लेकिन अनावश्यक खर्च अगर उसमें जो लीकेजेस थे कम हुए हैं तो वो उतना ही कम हुआ है, बाकी नहीं। मिड डे मील स्कीम में 6 लाख, केवल 2 स्टेट में केवल आधार का लिंकेज करने के कारण 6 लाख जो स्टूडेंट नहीं थे, घोष स्टूडेंट्स थे, उनके नाम पे एमडीए का पैसा जो जाता था वो खत्म हुआ। ऐसा काम तो करेंगे हम, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा कम नहीं करेंगे। और जो राजीव जी ने कहा प्रौढ़ शिक्षा का जो कहा, साक्षरता का, उसके बारे में भी कहूँगा। हम भी एक कल्पना पर विचार कर रहे हैं कि अभी हर घर का छात्र स्कूल में है, तो बाहर से आकर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। जो साक्षर नहीं है उनको उनके ही बच्चे सिखाएंगे, उसको भी कितना लगेगा अच्छा कि मैंने मेरे दादा दादी को सिखाया, मैंने मेरे माँ बाप को सिखाया, और उनको भी कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बेटा मेरा गुरु हो गया, उन्होंने मुझे सिखाया। ये भी पद्धति पर हम जरा काम कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। शिक्षा नेशनल एजेंडा है, हमें सभी मिलकर उसको अच्छा बनाना है, और इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अब बहुत बहुत धन्यवाद। So, did you mention about children being asked to go to school on Saturday? अब शनिवार को छुट्टी देना है, एक शनिवार के बाद छुट्टी देना है, But, that is left to the but states. childhood is the right to the children. Yes. And robbing that is not good. No, sir, I Saturday, agree. you should leave it to But children there for is, sir, there is another playing. issue also. शिक्षा के अधिकार से जुड़े बिल के संशोधन पर राज्यसभा के सभी सदस्यों ने समर्थन किया। साथ ही 7 साल पुराने आरटीई कानून की समीक्षा भी की गई। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपयुक्त सुझाव को बिल में सम्मिलित करने का भरोसा दिया। नमस्कार।